یہ بات ہماری روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں آتی ہے کہ اگر برف لے کر اسے پلیٹ میں رکھیں تو وہ عام ٹیمپریچر پہ پگھل کر پانی بن جاتا ہے، اور اگر اسی پانی کو گرم کیا جائے تو پہلے یہ کھولے گا اور اس کے بعد بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ گویا صرف گرم کرنے سے مادہ کی ایک حالت دوسری میں اور دوسری تیسری میں تبدیل ہو گئی۔ مزید یہ کہ ان کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت بھی مختلف ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا پروگرام حرارت اور درجہ حرارت یعنی ہیٹ اور ٹیمپریچر سے متعلق ہے۔ ایک بیکر میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی گرم ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں یہ پانی اتنا گرم ہو جائے گا کہ اسے چھونا بھی مشکل ہوگا۔ پانی کیوں گرم ہوا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ سے کوئی شے پانی میں منتقل ہو جاتی ہے جو اسے گرم کر دیتی ہے۔ اس شے کو ہم حرارت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے، اگر آپ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑیں تو کچھ ہی دیر میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں۔ جتنی زیادہ دیر تک ہاتھ رگڑے جائیں گے اتنی ہی زیادہ حرارت پیدا ہوگی یا ہاتھوں کو زیادہ گرمی کا احساس ہوگا۔ در حقیقت ہاتھوں کے رگڑنے میں کچھ توانائی صرف ہوتی ہے، اور یہ توانائی حرارت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ گویا حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام مادی اشیاء مالیکیولوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں، اور یہ مالیکیول ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء، مثال کے طور پہ برف، دھات کا یہ گولا۔ ٹھوس اشیاء میں مالیکیولز صرف اپنی جگہ پر ہی حرکت کرتے ہیں، اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حرکت ارتعاشی حرکت ہوتی ہے، یعنی وہ وائبریٹ کرتے ہیں، جبکہ مائعات، مثال کے طور پہ پانی، مائعات اور گیسوں کے مالیکیولز ایک جگہ سے دوسری جگہ بے قاعدگی سے حرکت کرتے ہیں۔ جب ٹھوس اشیاء کو گرم کیا جاتا ہے تو ان کے مالیکیولوں میں تیزی کے ساتھ ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث ان کی حرکی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مائعات اور گیسوں کو گرم کرنے پہ ان کے مالیکیولز کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور حرکی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا حرارت پیدا ہونے کی بنیادی وجہ مالیکیولوں کی حرکی توانائی ہے جو کہ حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ طبیات یعنی فزکس میں حرارت کی تعریف یوں ہے: حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جس کا تعلق مالیکیولوں کی حرکت سے ہے، یا کسی بھی جسم میں موجود حرارت کی مقدار اس کے مالیکیولوں کی مجموعی حرکی توانائی کے برابر ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ توانائی کی دوسری اقسام کو بھی حرارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کے ہیٹر میں برقی توانائی استعمال ہو رہی ہے، اور بجلی کا ہیٹر جو توانائی بجلی کی صورت میں استعمال کر رہا ہے اسے اپنے ارد گرد حرارت کی صورت میں پھیلا رہا ہے۔ ہیٹر جتنی زیادہ برقی توانائی استعمال کرے گا اتنی ہی زیادہ حرارت پیدا ہوگی۔ اسی طرح جو مثال آپ کو ہاتھوں کے رگڑنے کی بتائی گئی تھی، اس میں ہاتھوں کے رگڑنے میں مکینیکل انرجی یا میکانی توانائی صرف ہوتی ہے جو کہ حرارت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ہاتھوں کو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ نہ صرف برقی توانائی اور میکانی توانائی کو حرارتی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، بلکہ توانائی کی دوسری اقسام بھی حرارتی توانائی میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس کے لیے ایک
तजुर्बा करते हैं। इस तजुर्बे के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: बीकर, थर्मामीटर, पेडल व्हील, पुली और वजन। एक बीकर में थोड़ा सा पानी लें जिसका मास और दर्जा हरारत आप मालूम कर चुके हैं। ये वजन जो पुली के सिरे से लटक रहा है हम नीचे की तरफ खींचते हैं और पेडल व्हील घूमना शुरू कर देता है। ये वजन कुछ फासला तय करता है जिसको हम एच का नाम देते हैं, गोया हमने वजन पे कुछ काम किया। अब हम पानी का दर्जा हरारत देखते हैं तो ये बढ़ जाता है। पानी का दर्जा हरारत क्यों कर बुलंद हुआ, जबकि बज़ाहिर तो आपने इसे किसी बर्नर पे नहीं रखा। दर हकीकत जब हम वजन को नीचे की तरफ खींचते हैं तो वजन पे कुछ काम होता है। ये काम मख्फी तवानाई की सूरत में जाहिर होता है और बिल आखिर ये मख्फी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील हो जाती है। गोया तवानाई की किसी भी किस्म को हरारती तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। अजीज तलबा, अभी आपने देखा कि मख्फी तवानाई की वजह से पानी में हरारत पैदा हुई और पानी गर्म हो गया, यानी पानी का दर्जा हरारत या टेम्परेचर ज्यादा हो गया। गोया किसी जिस्म को गर्म करने से उसका दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है और ठंडा करने से दर्जा हरारत घटता चला जाएगा। एक गर्म जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा होता है और एक ठंडे जिस्म का कम। अब ये देखते हैं कि हरारत और दर्जा हरारत यानी हीट एंड टेम्परेचर में क्या फर्क है। इसके लिए एक तजुर्बा करते हैं। 2 मुख्तलिफ साइज के बीकर लें और दोनों में पानी डाल के उन्हें गर्म करें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि छोटे बीकर वाला पानी बड़े बीकर वाले पानी के निस्बत ज्यादा गर्म है, यानी छोटे बीकर वाले पानी का दर्जा हरारत बड़े बीकर वाले पानी के दर्जा हरारत से ज्यादा है, जबकि दोनों को गर्म करने का दौरानिया एक जितना था। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बीकर वाले पानी का दर्जा हरारत छोटे बीकर वाले पानी के दर्जा हरारत के बराबर करने के लिए हमें बड़े बीकर को हरारत की ज्यादा मिकदार पहुंचानी पड़ेगी। आपने बड़े बीकर को हरारत की ज्यादा मिकदार पहुंचाई और दोनों का दर्जा हरारत एक बराबर हो गया। अब आप बर्फ की कुछ मिकदार लेकर बड़े बीकर वाले पानी में भी डालें और छोटे बीकर में भी। बड़े बीकर वाला पानी बर्फ की ज्यादा मिकदार को पिघला देगा निस्बत छोटे बीकर वाले पानी के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़े बीकर वाले पानी को हरारत की ज्यादा मिकदार पहुंचाई गई थी निस्बत छोटे बीकर के। गोया इससे यह नतीजा अख्ज़ हुआ कि एक ही दर्जा हरारत पे बड़े बीकर वाले पानी में छोटे बीकर वाले पानी की निस्बत हरारत की ज्यादा मिकदार पाई जाती है, इसलिए वो बर्फ की ज्यादा मिकदार को पिघला सकता है। दर्जा हरारत को समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। एक बीकर में थोड़ा पानी लें और इस पानी का दर्जा हरारत नोट कर लेते हैं। ये दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब धात के इस गोले को अच्छी तरह से गर्म करते हैं और धात का ये गर्म गोला ठंडे पानी वाले बीकर में डालते हैं। अब दर्जा हरारत दोबारा नोट करते हैं। दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब अगर इस धात के गर्म गोले को छूना चाहें तो हम इसे छू भी सकते हैं।
ऐसा क्यों हुआ? दर हकीकत धात के गर्म गोले का दर्जा हरारत ठंडे पानी के दर्जा हरारत से ज्यादा था। जब दोनों को इकट्ठा रखा गया तो हरारत गर्म गोले से ठंडे पानी में मुंतकिल हुई और हरारत की इस मुंतकिली की वजह दोनों अजसाम के दर्जा हरारत में फर्क है। गोया हमने ये नतीजा अख्ज़ किया कि हरारत ज्यादा दर्जा हरारत वाले जिस्म से कम दर्जा हरारत वाले जिस्म में मुंतकिल होती है, और अगर दोनों अजसाम का दर्जा हरारत एक बराबर हो तो उन्हें इकट्ठा रखने पर हरारत की कोई मुंतकिली नहीं होती। तिब्बियात यानी फिजिक्स में हरारत, दर्जा हरारत या टेम्परेचर की तारीफ यूं है कि दर्जा हरारत से हमें ये पता चलता है कि कोई जिस्म कितना गर्म या ठंडा है, और इसी से हमें हरारत की मुंतकिली का भी अंदाजा होता है। दर्जा हरारत किसी जिस्म के मॉलिक्यूलों की औसत हरकी तवानाई के बराबर होता है। अजीज तलबा, आपने ये देखा कि किसी जिस्म को गर्म करने से उसका दर्जा हरारत ज्यादा हो जाता है। गर्म करने से न सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा होता है बल्कि अक्सर अजसाम गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। हरारत से अजसाम के फैलाव को मॉलिक्यूली नजरिए की मदद से भी समझा जा सकता है। जब हम किसी जिस्म को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलों की हरकी तवानाई में इजाफा हो जाता है। जब ठोस अशिया को गर्म किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूलों में तेजी के साथ इर्तियाश पैदा होता है या उनके इर्तियाश का हीता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलों का दरमियानी फासला ज्यादा हो जाता है और ठोस अजसाम गर्म करने पर फैलते हैं या वो ज्यादा जगह घेरते हैं। ठोस अशिया के फैलाव की कई मिसालें रोजमर्रा जिंदगी में मिलती हैं। मसलन रेलगाड़ी की पटड़ियां बिछाते वक्त उनके दरमियान थोड़ा फासला छोड़ दिया जाता है ताकि मौसम गर्मा में हरारत से पटड़ियों के फैलाव के लिए गुंजाइश मौजूद हो। अगर पटड़ियों के दरमियान फासला न छोड़ा जाए तो उनके टेढ़ा होने का इम्कान होता है। इसी तरह अगर किसी बोतल का ढकना उसके मुंह में फंस जाए तो बोतल के मुंह को बाहर से गर्म करने पर ढकना आसानी से बाहर निकल आता है। इसकी वजह यह होती है कि गर्म करने पर बोतल का मुंह फैल जाता है और इस तरह ढकना ढीला होकर बाहर निकल आता है। पुल बनाते हुए लोहे की शैतीरों को एक तरफ कस दिया जाता है जबकि उनके दूसरे सिरे सतूनों पर रखकर खुले छोड़ दिए जाते हैं ताकि गर्मियों में बाआसानी एक तरफ फैल सके। अगर शैतीरों को दोनों तरफ से कस दिया जाए तो वो गर्मी से फैलने पर टेढ़े हो सकते हैं और इस तरह पुल को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो सकता है। जब ठोस अजसाम को गर्म किया जाता है तो उनकी लंबाई, सतह के रकबे और हुज्म में इजाफा होता है। किसी जिस्म की लंबाई में इजाफे को तूली फैलाव कहते हैं। इसी तरह किसी जिस्म की सतह के रकबे में इजाफे को सतही फैलाव और हुज्म में इजाफे को हुज्मी फैलाव कहते हैं। अजीज तलबा, आइए ठोस अजसाम में फैलाव को समझते हैं। धात की एक सलाख लें। इसकी इब्तदाई लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस सलाख को हम इस गैप में फिट करते हैं। इस गैप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। ये सलाख बाआसानी फिट हो रही है। अब इसी सलाख को हम गर्म करते हैं।
गर्म करने के बाद इसको दोबारा फिट करते हैं उसी गैप में। गर्म करने से इसकी लंबाई में इजाफा हो गया, इसलिए ये इस गैप में फिट नहीं हो रहे। इसी चीज को हम मैथमेटिकली देखते हैं बोर्ड पे। धात की एक सलाख लें जिसकी इब्तदाई लंबाई L1 और इब्तदाई टेम्परेचर T1 है। इस सलाख को अब आप गर्म करें। टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा और लेंथ L1 से L2, यानी सलाख की लंबाई में इजाफा हो जाएगा। L2 माइनस L1 लंबाई में कुल इजाफा है। और T2 माइनस T1 दर्जे हरारत में इजाफे को जाहिर करता है। ये बात मुख्तलिफ तजुर्बात से सामने आती है कि लंबाई में इजाफा डेल्टा L इब्तदाई लंबाई L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी रास्त मुतनासिब है और दर्जा हरारत में इजाफा यानी डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रास्त मुतनासिब है। इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T और डेल्टा L is equal to alpha L1 delta T. Alpha is the, यहां पे alpha constant of proportionality है, यानी तनासुब का जुज़्वे मुस्तकिल। अल्फा को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर L1 डेल्टा T। अगर लंबाई की इकाई सेंटीमीटर और दर्जे हरारत की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल की जाए तो अल्फा की इकाई 1 ओवर डिग्री सेंटीग्रेड बनती है। इसी तरह अगर आप लंबाई की इकाई मीटर और दर्जे हरारत की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करें तो भी अल्फा की इकाई 1 ओवर डिग्री सेंटीग्रेड बनेगी। इस इक्वेशन में अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी तनासुब का जुज़्वे मुस्तकिल है। इसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी तूली फैलाव की शरह कहा जाता है। इसकी तारीफ यूं की जा सकती है, किसी सलाख की तूली फैलाव की शरह उसके टेम्परेचर में 1 दर्जा इजाफे पर उसकी इकाई लंबाई में इजाफा है। अब अगर हम 2 मुख्तलिफ सलाखें लें, मिसाल के तौर पे एक कॉपर की और दूसरी सिल्वर की, इन दोनों की इब्तदाई लंबाई बराबर है और इनका इब्तदाई दर्जे हरारत भी बराबर रखते हुए अगर हम इन दोनों को बारी बारी गर्म करें, दर्जे हरारत में इजाफा एक जितना होगा मगर लंबाई में इजाफा मुख्तलिफ होगा, जिससे ये पता चलता है कि अल्फा की कीमत मुख्तलिफ अजसाम के लिए मुख्तलिफ होती है। अजीज तलबा, ये तो था ठोस अजसाम में तूली फैलाव। आइए अब हुज्मी फैलाव को समझते हैं कि ठोस अजसाम के हुज्म में कैसे इजाफा होता है और हुज्म में इजाफे की वजह से उनमें क्या तब्दीली आती है। धात का ये एक गोला लेते हैं, इस गोले को इस
रिंग में से गुजारते हैं, ये गोला बआसानी गुजर गया। अब इसी गोले को गर्म करते हैं। धात के इस गोले को गर्म करने के बाद दोबारा गुजारते हैं तो ये रिंग में से नहीं गुजर सकता। इसकी वजह क्या है? धात के गोले को गर्म करने से पहले धात के गोले का साइज रिंग के साइज के बराबर था, जिसकी वजह से वो बआसानी गुजर गया। गर्म करने की वजह से उसका साइज बड़ा हो गया और उसका रिंग से गुजरना भी मुश्किल हो गया। इसके साइज में इजाफा इसके हुज्म में इजाफे को जाहिर करता है। ये थी ठोस अजसाम में हुज्मी फैलाव की एक मिसाल। अजीज तलबा, आइए अहम नुकात को एक दफा फिर दोहरा लेते हैं। हरारत तवानाई की एक किस्म है जिसका ताल्लुक मॉलिक्यूलों की हरकत से है, या किसी भी जिस्म में मौजूद हरारत की मिकदार उसके मॉलिक्यूलों की मजमूई हरकी तवानाई के बराबर होती है। हरारत ज्यादा दर्जा हरारत वाले जिस्म से कम दर्जा हरारत वाले जिस्म में मुंतकिल होती है। दर्जा हरारत से ये पता चलता है कि कोई जिस्म किस कदर गर्म या ठंडा है, और इसी से हरारत की मुंतकिली की सिमत का भी अंदाजा होता है। किसी जिस्म का दर्जा हरारत उसके मॉलिक्यूलों की औसत हरकी तवानाई के बराबर होता है। किसी जिस्म की लंबाई में इजाफे को तूली फैलाव कहते हैं। अजीज तलबा, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि हरारत और दर्जा हरारत से मुताल्लिक था, खत्म हुआ चाहता है। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।